मैं मंटू नहीं हूँ, जी। जिसमें आपका किरदार है मिस मारिया का, मारिया। जिसमें हम बात करेंगे। जी, जी। बट तो वहीं से शुरू करते हैं फिर। हुँ। सबसे पहले ये बताएं कि हाउ डिड द रोल कम टू यू एंड हाउ डिड यू एक्सेप्ट, बिकॉज ये बात हर बंदा सोचता है कि सनम इतनी जो you're a very very good actor, so in this role doesn't always seem to have that kind of depth, or has it not? I don't know. It last year in June, I got a call from Nadeem. I was finishing Jo Bache Hain Sang Samet Lo. I was in Europe and I got a call और उन्होंने कहा कि एक रोल है, टीचर है, I think you'd be good for it. I know that this role had been offered. That I know that मैं मंटू नहीं हूँ, काफ़ी टाइम से बन रहा था, इसकी कास्ट बहुत फ़र्क थी पहले, and it's been changing and evolving over the years. तो उन्होंने कहा एक रोल है, हुमायूं, सजल, तुम, all the other actors, he took the names and I was like, I've never worked with हुमायूं, ना सजल के साथ, ना नदीम के साथ. नदीम बेग ने मुझे पहले 2 दफ़ा ऑफर्स की हैं, and one I couldn't do about 11 years ago. That was with Humayun. Another project had come up and I said, Humayun, this is an opportunity, a big opportunity. Should I do it? Should I not? He said, वो करो, ये आते रहेंगे ड्रामे. मैंने कहा ठीक है. वो दिन और आज का दिन, and he keeps saying, if you had done that role, तुम, मैं कहती कहाँ पहुँच जाती, यहीं पे होती जहाँ मैं हूँ. Then a second one came and a third one, मैं कहती अगर मैं नदीम साहब को मना करती तो this time he'll be like, चलो अब 3 no's means please don't ask me Don't anymore. ask me But again. ऐसी कोई बात नहीं थी, I just wasn't available all those times. So this time I was like, chalo. Nadeem has called me again. It's got Humayun, it's got Sajal. It's a KRQ script, but okay, let's see what we can do. I said जो भी है ठीक है, just tell me. He said I'm sending you the scenes. He said but जो अभी तुम वापस कब आ रही हो? We have 2 scenes to shoot or whatever. I said oh my god, I don't have time to read the whole script now. He said just read your parts. So this is the first time कि मैंने पूरा script नहीं पढ़ा, सिर्फ अपने parts पढ़े. And सिर्फ अपने parts जो मुझे मिले थे, I really enjoyed Miss Maria. I never played this a woman who lives in a अपनी जिंदगी में, मतलब she thinks वो उसकी बीवी है, जिस तरह वो बिहेव करती है. So it's sweet. She's just उसकी ना राइटिंग में उसकी कोई फैमिली का जिक्र नहीं है. अभी वो अकेली एक टीचर है, ये उनके कॉलीग हैं, दोनों एक टीचर कम्युनिटी में रहते हैं. And she's just, it's a one way street of love. He is clearly not interested in her उस तरह, but very dependent on her. दोस्त हैं दोनों, बस. और वो उसको प्यार है उससे, और वो it's okay अगर वो उससे वापस प्यार नहीं करता. She is there for him, which I thought was very sweet. I haven't come across a character like that. And he said, I want sarees. I said, you are obsessed with sarees. आपके बहुत सारे कैरेक्टर साड़ियाँ पहनते हैं. तो बट मज़ा आया साड़ी पहन के, although as if मैंने पहले साड़ी कभी पहनी नहीं है. दिल, दियारे दिल में, तलखियाँ में, that one with आखिरी station. I was like, oh, I've done a lot of sarees, but what can we do differently? So then my makeup artist Sajid was like, अब सजल के straight बाल थे, तो नदीम ने कहा कुछ फ़र्क किस तरह? तो we said, let's just try the curly hair. I mean, it can be a hit or miss. Sajid had done Aiza's hair in one of the Eid plays, which turned out well. So we said, okay, do it. It's not the most heroine wali look, but I was like, that's never been my concern. चलो करते हैं. तो उस कैरेक्टर को बनाने में मज़ा आया. फिर I felt different. Curly बाल के साथ, I was like, ये कौन है? So that was fun. Working with Humayun was sweet. My scenes with him, we shot in the house. घर पे scenes थे, BNU में scenes थे, और थोड़े से outdoor थे. मज़ा आया वो करके. Also, I was like 7 साल बाद मैं TV कर रही हूँ. Let me get my foot in the door again. मुझे ज़रा आदत series और फिल्मों की हो गई थी. Yes. Deedan was my last project. Oh wow, 7 साल बाद. Yes. Okay. So I needed to, मतलब prepare Get your myself foot in the कि door. हाँ कि कि series और film का जो माहौल है वो बिल्कुल ही फ़र्क है TV से. बिल्कुल. तो ज़रा system में दोबारा आना, timings, hurdles, makeup, hours, ये सारा, I was like, let me have a warm-up session. It was 30 days of work. I said, चलो spread over a few months. So I said, ठीक है, done. And that's how Miss Maria happened, and that's how this project happened. Yeah. I mean, in isolation, the way you're describing Yeah, it. in isolation, Miss Maria so I'm वाकई getting a fun lot of character है. क्यों ये क्यों क्या इतना कम रोल. मुझे वो कभी उससे तकलीफ नहीं हुई कि मेरे साथ एक और हीरोइन है, नहीं है, छोटा रोल है, बड़ा रोल है. अगर मज़े का रोल है और आप सही से कर रहे हो तो फिर याद रहेगी. अब सब कश्यप से अब मिस मारिया पे आ गए. हाय मिस मारिया, ओ मिस मारिया, आप मिस मारिया.
हाँ, ये भी हो सकता ये है, भी हो सकता ये भी हो सकता है, एंड व्हाई नॉट। बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन टीचर और स्टूडेंट्स की जो रिलेशनशिप है उस पे शुरू हो गई है। मंटो साहब को मिस्टर मंटो को लेके और मिस मारिया को लेके एंड ऑफ कोर्स मेमल को लेके कि पहली बात तो ये कि जी इतनी बेतकल्लुफ़ी कहाँ होती है कि मिस मारिया ने जी नए स्टूडेंट्स में बर्थडे पे ही बुला लिया। और फिर दूसरा ये कि जो रोमांस दिखा रहे हैं पोटेंशियल बिटवीन मिस्टर मंटो एंड मेमल, उस पर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है। हाउ डू यू हियर दैट? हाँ, ethically it's not right. मतलब teacher students cannot get into a relationship. And they won't while they मतलब जब तक आप उस स्टूडेंट के टीचर हैं और आप उनके वो शागिर्द हैं, आप शागिर्द सही बोला ना, तो फिर यू कांट बी इन रिलेशनशिप। लेकिन अगर उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है या छोड़ देगी क्योंकि उसको प्यार हो गया तो दैट्स जायज़। मतलब अगर आप 20 साल की लड़की से 40 साल का आदमी शादी कर सकता है, there's a 20-year difference there, तो this is also a 20-year difference. The student, I don't know, it's ethically not correct, लेकिन प्यार हो जाता है। The point of this script and this कहानी is कि हो जाता है, ना चाहते हुए भी कभी हो जाता है। आपको पता है गलत है, नहीं होना चाहिए, you try to make it as kosher as जिस तरह कर रहे हैं। वो इमीडिएटली रोमांटिक नोट्स नहीं लिख रहे, बट यू कैन सी कि टेंशन है कि नहीं, ये प्यार मोहब्बत हो जाएगी, फ्लर्ट कर रही है। गोली कर लेने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए, गोली खाने को तैयार हूँ, गोली खाने को, चलाने को भी तैयार हूँ। बट इवेंचुअली फिर इस बात पे आ जाता है कि यार आई एम इन लव विद यू एंड आई विल डाई फॉर यू, तो हो जाता है। इट्स अ स्टोरी, एब्सोल्युटली इट्स अ स्टोरी, फिक्शन है, रियलिटी थोड़ी, डॉक्यूमेंट्री थोड़ी है। डू यू थिंक लोग बहुत सीरियसली लेते हैं ड्रामे? क्यों लेते हैं इतना सीरियसली? क्योंकि हमने बहुत अच्छे ड्रामे दिए हैं जिसमें बहुत अच्छे सबक मिले हैं लोगों को, जहाँ पे अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स देखने को मिले हैं लोगों को। तो जब एक ख़ास किस्म का एक्टर या एक्टर्स अलग काम करते हैं तो वो थोड़ा हिल जाते हैं लोग कि आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, विच इज़ व्हाट दे से ना, कि फलां एक्टर ने ये भी किया है, ये भी किया, ये क्यों किया? बिकॉज लाइक आई हैव ऑलवेज सेड ऑन द इंटरव्यूज, we get bored, you want to diversify your portfolio also. हम लोग सबक सिखाने तो नहीं आए ना, हम लोग तो टीचर्स नहीं हैं। इट्स अ प्रिविलेज दैट हमारे ज़रिए आप लोगों को, ऑडियंस को एक मैसेज पहुंच जाता है and they get inspired. But we're just playing different roles and different characters. Some you'll like, some you'll hate, some you'll idolize, some you'll be like, why did you do this? Even we'll be like, why did we do this? But you won't know till you try it. Next time, maybe, you know, we won't take a role that had a very negative impact, or maybe we won't do a role that was so small. We won't, matlab, it's okay, itna seriously नहीं। But does an artist draw the line anywhere, सनम, कि नहीं ये वाकई problematic है, ये मैं नहीं इतना करूँ? problematic नहीं था। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, दूसरी बात है कि for people who जो बहुत तनकीद कर रहे हैं, बहुत उनको मसला हो रहा है कि जी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, उनको होना चाहिए, बिकॉज़ ये गलत है, लेकिन हमारे ड्रामे की वजह से कोई ये नहीं देखेगा कि मंटो और महमल ने किया तो अब हम भी कर सकते हैं। भाई अगर उन्होंने करना है रोमांस अपना या कुछ करना है वो करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस दे विल फेस, एंड इफ दे नो इट्स रॉन्ग। आई मीन इट हैपेंस, इट्स जस्ट अच्छा। सो नॉट रिलेटेड टू मंटो, लेकिन ये बहुत कॉन्वर्सेशन आजकल लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जो खबरों में सुन रहे हैं आजकल कि यू नो मेन हु आर परस्यूइंग वुमेन, popular women on social media